Good morning, students. How are you? I think you will be fine. I welcome you in our computer class of Chapter 3 Layers and Animation in Animate. In the previous video, we have discussed about what is Animate. Animate is a animation software which is basically used to give movements to the static states, drawn images, creating small movies. It is used for giving the movements to the still states, that is known as animation. Then we have covered graphics in Animate. We can draw different graphics that are known as objects, as well as we can import graphics from the other files which are stored in our computer. Then it comes layers. Layers are just like the transparent sheets which can be stacked one upon other. These are helpful in editing our objects, like if we want to change something in our graphics so that it can be make it easier to change and edit that graphics. For today, students, are you ready with your book or notebook? So let's continue our chapter, that is symbols and instances, in today's lecture. A symbol is an object in Animate. This object is stored in the library. It can be it can be used repeatedly throughout a movie. A symbol can be graphic object, a movie clip, a graphic created in another program, और a button sound clip may also be a symbol. अब सिंबल होता क्या है? सिंबल जो है एक हमारा कोई भी ड्रोन फिगर हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई स्मॉल वीडियो हो सकती है, कोई भी ड्रोन इमेज हो सकता है, उसको जो है हम एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. उस ऑब्जेक्ट को जब हम लाइब्रेरी में स्टोर कर लेते हैं वो हमारा एक सिंबल बन जाता है. ये सिंबल हम जो है अपने इमेजेस के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बार बार यूज कर सकते हैं जब हमें इसकी जरूरत होती है. When you drag a symbol from the library to the stage to create an instance, using instance does not affect the file. No matter how many times you reuse a symbol, you can create many instances of the same symbol, each with its own set of properties like different colors, different size, etc. You can create these symbols so that they can be used in your animate movie as instances. अब instance क्या होता है? Instance is a duplicate copy of the symbol. Once you have created a symbol, then you can create its different duplicates. उन duplicates के अंदर जो है आप लोग उनका कलर डिफरेंट बना सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का जो सेट है, उनका साइज हो गया, उनका कलर हो गया, उनका बैकग्राउंड कलर हो गया, उनकी एक्टिविटीज हो गई, उनका साइज हो गया, उसको जो है आप अलग अलग कर सकते हैं. और ये जो इंस्टांसेस हैं इनको जो है आप लोग एक ही मूवी के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स जो है यूज कर सकते हैं. और एक सिंबल के जो है आप लोग मल्टीपल इंस्टांसेस मीन्स एक ही सिंबल के कई सारे इंस्टांसेस आप लोग बना सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन क्रिएट एज मच इंस्टांसेस एज यू वांट. दे कैन बी रिक्वायर्ड व्हेन यू आर मेकिंग अ स्मॉल मूवी. In that you can create, you do not need to do the same thing again and again. You can just create symbols, then make their instances and use them when you are required all these. Next is that
Animation in Animate. Students, you have the very interesting thing, animation. Have you ever seen the cartoons either on the TV? Have you seen the different characters in your favorite cartoon networks, serials, movies, or in some video games which behave like human beings? Do you know these are living or non-living objects? Now listen, these are not the living things but they are behaving like that. How it is possible that they behave like human beings? It is the feature that is known as animation, which make them to give movement to these static states. जो भी हमारे ये कार्टून्स के अंदर आप लोग देखते हैं, चाहे वो आपकी मूवी है, चाहे वो कोई सीरियल है, चाहे वीडियो गेम है, जो भी उनके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं. बट एक्चुअली में जो है ये लिविंग थिंग ना होकर के कुछ जो हमारे ड्रा किए हुए फिगर्स होते हैं, कुछ ड्रा किए हुए हमारी करेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग जो है ड्रा करके सिस्टम के अंदर डालते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है उनको कुछ भी हम करवा सकते हैं, उनका मूवमेंट करवा सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द एनिमेशन. एनिमेशन फीचर इज द मोस्ट एक्साइटिंग aspect of Adobe Animate. You can place your Animate project on a web page or distribute it others to view. Animations can be used for a live message or for entertainment. Animations make a website come to life. In animation effects, the scene or object changes slightly from one frame to the next. It creates the illusion of movement. Each frame replaces the earlier one so quickly that it is difficult to notice it. इसका मतलब क्या है? एनिमेशन जो है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हमने मूवमेंट देना है, हम उनकी डिफरेंट स्टेट्स जो है बनाते हैं. सपोज करें किसी को हमने फॉरवर्ड मूव करना है तो उसके स्टेप्स बनाने पड़ेंगे. सबसे पहले कार्टून हमने ड्रा किया, नेक्स्ट में उसका एक पाँव आगे बढ़ाया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर नेक्स्ट उसका पाँव आगे बढ़ाया. तो इस तरह से जो है हम उसको अलग अलग उसकी स्टेट्स ड्रा कर लेते हैं और ड्रा करने के बाद एनिमेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उनको जो है फ्रेम बाय फ्रेम इतने क्विकली मूव करवाते हैं तो ये हमें ऐसा लगता है कि जैसा जो है ये एक मूवी प्ले हो रही है और उसके बैकग्राउंड के पीछे जो हम अपनी वॉइस डाल देते हैं ताकि वो इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे उसको कहा गया है वो वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है. Thus we can see that animation in an illusion of movements of the different static states, they appear so quickly so it seems that it is a real movie, but it is actually only the movement of the static states. क्यों इनके अंदर हम क्या करते हैं, एक फ्रेम के अंदर एक स्टेट डाल देते हैं, नेक्स्ट फ्रेम के अंदर उसकी नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट फ्रेम के अंदर नेक्स्ट स्टेट. जो भी हमने उनसे करवाना होता है ये जो कि हम उसकी स्टेट डिफरेंट जो स्टेजेस आएंगी उनको डाल देते हैं और उसके बाद इन फ्रेम्स को इतना जल्दी टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर उसको मूव करवाया जाता है एनिमेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा और वो हमें ऐसा लगता है कि वो जो भी हमारा मूवमेंट है वो एक मूवी बन जाता है. दे मूव सो फास्ट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नोटिस व्हाट इज इट इन एक्चुअल. उसको इतनी जल्दी से उसको मूवमेंट दिया जाता है, इतनी जल्दी से उसके क्विकली जो है उसको प्ले किया जाता है, उसको हम जो है ये पहचान नहीं सकते कि ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं या जो है एक मूवी है. So these are known as the animations. These animations can be used for entertainment, for designing different type of advertisements,
for creating animated serials or known as cartoon serials, cartoon movies, video games which you like to play frequently and very interesting. So these are the animations. Now it is set movie dimensions and speed for animation. अब इसका मतलब क्या है, सेट मूवी डायमेंशंस एंड स्पीड फॉर द एनिमेशन? इसका मतलब ये है कि जो भी आप लोग एक कार्टून की या एक स्मॉल मूवी बना रहे हैं, उसके अंदर जो है उसकी डायमेंशंस, उसका साइज क्या हो, उसकी स्पीड क्या हो, उस एनिमेशन के लिए मीन्स जो भी आप स्मॉल मूवी बनाएंगे उसके लिए क्या हो, और किस तरह से जो है उसको आप मेजर कर सकते हैं. बिफोर क्रिएटिंग एनी एनिमेटेड मूवी you should set up the movie size and speed at which you want to play the movie. A movie dimension refers to its horizontal and vertical size on the stage. The play speed of the movie determines the number of frames per second, which is known as FPS. F for frames, P for per, S for second, in which the animation occurs. The frame rate is measured by the number of frames per second. A frame rate is too slow makes the animation appears to stutter. Stutter का मतलब होता है to stop and start. It will take very long time for stopping and starting. While a frame rate is too fast blurs the details of the animation. If the animation speed is too fast, then it will just make the faded effects or your movie will not be very clear. A frame rate of 30 fps frames per rate is the default setting for new animated documents and usually gives the best result on the web. अब जो सारा है इसका मतलब क्या है? जब भी हम जो है अपनी कोई भी एनिमेटेड मूवी बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो है हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले क्या है, भाई मूवी का जो साइज है वो कितना होना चाहिए. साइज का मतलब ये नहीं है उसकी ऊंचाई क्या हो. साइज का मतलब जो है कितने मिनट की आप लोग एक मूवी बनाना चाहते हैं. उसकी स्पीड क्या है. स्पीड का मतलब क्या है कि जब आप उसको प्ले करें तो जो उसके करेक्टर्स हैं उनका मूवमेंट किस स्पीड पर हो. ये चीजें यहां पर मैटर करती हैं. उसके बाद मूवी की जो डायमेंशंस हैं वो रेफर करती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइज ऑन द स्टेज. कि जब आप लोग ये मूवी बनाएं उसकी जो डायमेंशन मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, स्टेज के ऊपर जो स्टेज का हमारा साइज है उस पर जो आपकी स्क्रीन होगी उस स्क्रीन के ऊपर जो है कितने बड़े हिस्से के ऊपर जो है वो दिखाई दे. फुल स्क्रीन देखनी है उसके ऊपर सेट कर सकते हैं. उसका कुछ छोटा साइज करना है वो आप लोग उसको सेट कर सकते हैं. सेकंड आता है उसका स्पीड. स्पीड यहाँ पर रेफर करती है इट विल डिटरमिन्स द फ्रेम्स पर सेकेंड. कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने सेकेंड के बाद, एक सेकेंड के बाद दूसरे जो फ्रेम आएगा वो कितने सेकेंड के बाद आना है. अगर जो है आपकी फ्रेम रेट कम होगी तो वो जो है आपकी जो एनिमेशन होगा उसको स्टार्ट एंड स्टॉप धीरे धीरे रुक रुक के चलाएगा. अगर आपकी फ्रेम रेट जो ज़्यादा फास्ट होगी तो जो आपकी एनिमेशन डिटेल्स हैं जो आपने उसको मूवमेंट दिया है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाएंगे, वो ब्लर्ड रहेंगे, वो धुंधले रहेंगे. और जो आप एनिमेट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो फ्रेम रेट दिया होता है वो 30 का होता है. अगर आप लोगों ने इसको कम इंक्रीज और डिक्रीज करना है आप लोग उस कर सकते हैं. इफ यू विल सेलेक्ट द प्रॉपर फ्रेम रेट that will be resulting in a best movie that can be usually used give the best results on the web. जब भी आप लोग अपनी मूवी को बनाते हैं उसके लिए अपना रेट्स पहले जो फ्रेम रेट है
उसको सेट कर लें, उसको डिफाइन कर लें कि भाई कौन सी फ्रेम रेट जो है आपके लिए अच्छी रहेगी, कितनी जो है आप लोग उसे क्लैरिटी देना चाहते हैं। जितना भी आप लोग जो है उसको अगर कम करते हैं तो भी आपका ठीक नहीं है, अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो भी आपकी क्लैरिटी अच्छी नहीं आएगी। सो बिफोर आई सजेस्ट यू दैट बिफोर क्रिएटिंग अ मूवी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट इट्स डायमेंशंस एंड स्पीड्स। ये क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास जो हम एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं या कोई कार्टून्स की स्ट्रिप चलाते हैं, उसके लिए स्पेस कुछ कम होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है हमें उसकी डायमेंशंस, उसका साइज़ वो सेट करना होता है। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वह 10, 15 या 20 सेकंड की हो सकती हैं। तो इतने के अंदर जो है हमें जो भी उसका मेन मैसेज होता है वो डिलीवर करना होता है। सो दैट इज़ वाई the dimensions and speed for animations are required before starting it, so that it can give you the better effects. So students, for today's it is over. So see you next time. Thank you and have a nice day.